Hello student, today I am going to teach about the subject Money and Banking class 12 chapter 2nd and its part 3rd. In this video we will discuss about the topic creation of credit. It is a part of 5th of second chapter that is a source of fund by bank. Creation of credit is creation of credit is a source of fund of bank. The money created by the bank is not the same money as issued by the government as a central bank of the country. Central bank of the country, that is a RBI. The money issued by RBI, that is a currency money, are not same. The money issued by created by bank, both are different. The money created by bank in terms of check, bill of exchange, discounting bill, and overdraft. This is a bank money, and central bank, that is RBI issue the currency money. Both are not same, but we can say that in literal term, note issued by the central bank may also be called bank money for the reason that they are also issued by bank. We know that central bank, that means RBI circulate their currency money through the bank, and they are also, we can also call this bank money in term of bank money of central bank. In every country nowadays, in every country central bank are available, and only central bank have a right to issue currency, and other banks are not right, have not right to issue currency money, that is a paper money. Bank money donates the optional money whose prevalence is mainly on the basis of the credit of the bank. The main purpose of bank money is mainly on the basis of credit of bank. Only increase the credit of bank. Creation of credit by the bank take place as following. What is a credit? Credit in term of bank is the total amount of bank, the total amount, that is total money available in bank, and bank use this money, uh, and bank use this money and increase their fund by issuing note. Central bank create credit by issuing notes, and in ancient time all the bank have a right to issue notes. However, under the present day system, the right to issue has been conferred upon the central bank in almost all the countries of the world. At ancient time, every bank have a right to issue money, but nowadays only central bank of all over the world have a right to issue money. And there are reserve of precious metal and approved security behind the issue note issued by central bank. Central bank not only issue a currency money, paper money, but also reserve some precious metals and approved security. As long as the confidence of the bank remain intact, those notes remain in circulation. And bank use credit, that is issuing money, and provides some purchasing power to the customer through such credit. बैंक जो है वो उसके पास जो भी क्रेडिट होता है, जो भी उसके पास अवेलेबल जितने भी अमाउंट हैं बैंक के पास,
बैंक उस अमाउंट को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देता है ताकि कस्टमर का जो भी परचेसिंग पावर हो, जो भी वो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद लें, और उससे जो है वो अपना क्रेडिट को क्रिएट करता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ अ थ्रू कैश डिपॉजिट। द कैश मनी डिपॉजिटेड बाय द बैंक ऑफ पब्लिक इज़ नोन एज कैश डिपॉजिट. This kind of deposit is also known as the preliminary deposit. It depends upon the will of customer to open such saving account or not. As there is no active contribution of bank in opening of such account, and such deposit is known as an inactive. Cash deposit prove the foundation for the creation of bank money. It means that कि बैंक कैश मनी, कैश डिपॉजिट क्या होता है, जो भी पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, किसमें, कैश में, तो उसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट। और इस तरह के डिपॉजिट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रीलिमिनरी डिपॉजिट। ये डिपेंड करता है कि अकाउंट किस तरह का है, और जब सेविंग अकाउंट है इट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ कस्टमर टू ओपन। ये कस्टमर की विल के ऊपर, कस्टमर ज़ीरो बैलेंस पर ओपन करा सकता है कि 1000 पर, कि 25,100 पर। तो ये इट डिपेंड अपॉन विल ऑफ कस्टमर टू ओपन सच सेविंग अकाउंट और नॉट। तो बैंक इस कैश जो डिपॉजिट होता है, उस कैश डिपॉजिट से भी मनी को क्रिएट कर सकता है, क्रिएशन ऑफ बैंक मनी, बैंक मनी को क्रिएट कर सकता है सच कैश डिपॉजिट। एक ये बेसिक होता है, जब उसके पास कैश अवेलेबल होगा तो वो किसी को लोन के टर्म में दे सकता है, वो किसी को किसी भी तरह से हेल्प कर सकता है, उसके रिटर्न में उसको इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट मिलेगा, और भी बहुत सारे उसको प्रॉफिट होते हैं। तो बैंक जो है क्रेडिट को इस तरह से क्रिएट करता है। Another point is a through loan or advance. As already said, when the bank gives loan and advance to its customer, the amount of loan is deposited in their account. As for example, bank get 100 crore in form of deposit and commences business by investing rupees 5 crore in building furniture and official requirement. The following would be the impact of the status detail of the bank. In this point, we can understand that some amount, the amount which are deposited by public and the share capital. इट इज़ वेरी हेल्पफुल एग्जाम्पल। कोई बैंक है, उसके पास एक कैश डिपॉजिट होगा जो कि वो पब्लिक से उसने डिपॉजिट किया, और दूसरी चीज़ उसके पास कुछ शेयर्स कैपिटल होंगे जो कि उसके शेयर्स के थ्रू मिलेंगे। बैंक को टोटल 15 करोड़ मिला। अब बैंक अपने अमाउंट का जो है उसमें कुछ पार्ट वो रिजर्व रख देती है फॉर फ्यूचर नीड्स, और जो कुछ पार्ट बचता है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देगी, फिर उससे उसका कैश उसको आगे चलकर उससे बेनिफिट मिलेगा। बट मेरा मेन टॉपिक क्या है इसमें, कि क्रेडिट किस तरह से क्रिएट करेगी बैंक, थ्रू लोन एंड एडवांस के थ्रू। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो एक बैंक है वो पब्लिक से एक दिन में कितना पैसा कलेक्ट करती है, पब्लिक कितना एक दिन में, एक महीने में कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं। जितना भी पैसा वो लोग डिपॉजिट करते हैं उसका 10% जो है बैंक अपने पास रखती है इन कैश फॉर्म, और बाकी सारे जो हैं वो उसको रिजर्व रख दिया जाता है या उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो हर एक बैंक के पास कैश बहुत ही ह्यूज अमाउंट में नहीं होता, वो एक लिमिटेड कैपिटल ही अपने पास, लिमिटेड कैश अपने पास रखती है। और जैसे कि 10 करोड़ उसको एक दिन में मिला 10 करोड़ रुपीज़, तो उसका 1 करोड़ वो अपने पास रखती है, और जो 9 करोड़ है वो उसको जो है इन्वेस्ट कर देगी या उसको रिजर्व रखेगी।
उसको, या वो किसी को लोन के फॉर्म में देगी, किसी भी तरह से करती है। तो बैंक जो है, कोई भी ओल्ड उसका कस्टमर आया, उसने बैंक से लोन लिया। अब बैंक ने, ओल्ड कस्टमर है, उसने बैंक से दोबारा आया लोन लेने, तो बैंक उसको जो है उसकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ओवरड्राफ्ट इशू कर देगी, क्योंकि बैंक के पास इतना सफिशिएंट पैसा है नहीं। तो वो ओवरड्राफ्ट का यूज़ करके वो उसका ओल्ड कस्टमर उसका बेनिफिट, उसका जो भी वांट होगी वो कर लेगा। जहाँ पे भी उसको इन्वेस्ट करना होगा वो उस ओवरड्राफ्ट से का यूज़ करके कर सकता है। अब कोई न्यू कस्टमर आया, अब न्यू कस्टमर जब आएगा तो बैंक उसको जो ओवरड्राफ्ट नहीं देती है, बैंक उसका एक अकाउंट ओपन कर देती है, फिर उससे बोलती है जब आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से पैसा ले लीजिएगा, जितना भी उस पर्सन की डिमांड होगी उतने लिमिट तक वो अकाउंट में अमाउंट उस हिसाब से डालती है। तो पहली चीज़ है कि बैंक इसी तरह से कुछ कैश लिमिट रखती है, कुछ रिज़र्व के थ्रू जो है इस तरह से लोगों को पैसा इन्वेस्ट, लोगों को लोन के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू पैसा देती है। फिर वहाँ से जो उसको फिर पैसा रिटर्न मिलता है विद हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, फिर वो सारी चीज़ उसके बेनिफिट के लिए फंड्स में हो जाते हैं। तो बैंक लोन और एडवांस के बैंक अपना फंड लोन एडवांस के तो इसी तरह से अपने फंड को इंक्रीज करती है। 3 point through credit deposit. Every part of the bank deposit with the bank is in form of credit deposit. When bank gives loan to its customer, the loan amount is not given in cash. Instead, the loan amount is deposited in the account of that customer. Every customer are not interested in cash money. They can issue check if there is a money in their account. The check can be used as a money. It is called a bank money. अब ये टॉपिक जो है थ्रू क्रेडिट डिपॉजिट के थ्रू किस तरह से बैंक अपना वर्क करती है। इन दिस पॉइंट कि जब बैंक लोन देती है किसी भी कस्टमर्स को, और लोन जो है बैंक इज़ नॉट गिवन इन टर्म ऑफ कैश के टर्म में उसने लोन नहीं दिया, बल्कि वो अमाउंट को लोन अमाउंट को उसने डिपॉजिट किया अकाउंट में उस कस्टमर के। अ कस्टमर आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैश मनी, तो कस्टमर जो है उसको कैश मनी नहीं चाहिए, वो इशू कर लेता है चेक। अब चेक इशू हो गया तो देयर इज़ मनी देयर अकाउंट, अगर मनी उसके अकाउंट में होगा तभी तो चेक क्या है, एक तरह से कैन बी यूज एज अ मनी की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट अ कॉल्ड अ बैंक मनी। लोन क्रिएट डिपॉजिट, लोन क्या क्रिएट करता है, डिपॉजिट क्रिएट करता है। मतलब बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ सच डिपॉजिट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव डिपॉजिट। इस तरह के डिपॉजिट को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव डिपॉजिट। अब कैश डिपॉजिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ एक्टिव डिपॉजिट। फिर उसके बाद कैश को डिपॉजिट हो रहा है, कोई भी पर्सन उसने कैश में पैसा दिया, जो कैश डिपॉजिट हो रहा, तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा क्रिएशन ऑफ एक्टिव डिपॉजिट करने में। मतलब एक्टिव डिपॉजिट क्रेडिट डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ का, बैंक किसी कस्टमर्स को क्रेडिट पर डिपॉजिट कर रही है। क्रेडिट में मतलब कि वो अब इन कैश के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बस वो चेक के थ्रू, इसके थ्रू वो उस पैसे का यूज़ भी कस्टमर भी कर रहा है और बैंक में उसको इजीली प्रोवाइड कर दे रही है। And the last one, by investing of money, and that is by purchasing of security. Bank also create credit, then it invest money in the purchases of security. The bank deposit all the purchase money in the account of person from whom he buys security. Suppose it means that बैंक जो है
वो मेन पर्पज दैट टू क्रिएट क्रेडिट, फिर उससे जो है बैंक इन्वेस्ट कर देंगे उसी क्रेडिट उस अमाउंट को फॉर परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी। हम इस एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं बैंक जो है वो शेयर्स कैपिटल के थ्रू पैसे को इसने इंक्रीज किया, पैसा मतलब कि बैंक के पास आया। सेकंड उसके पास आया 150 करोड़ फॉर इन फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट, जो एक के पब्लिक से उसको जनरेट हुआ। अब बैंक के पास टोटल कितना अमाउंट है 155 करोड़ रुपीस। अब बैंक हमेशा अपना 10% जो भी होता है अवेलेबल कैश का जो उसका रेशियो फिक्स होगा उसमें से उसको कैश रिजर्व रखना है। फिर उसमें से 45% उसने इन्वेस्ट कर दिया बाइंग ऑफ सिक्योरिटी को ख़रीदने के लिए, ताकि उस सिक्योरिटी को ख़रीदने के बाद फिर वो कस्टमर को सेल कर देगी, उससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। उसमें से 90 करोड़ उसने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ इन्वेस्ट किया, लोन के थ्रू, लोन में मतलब पब्लिक को लोन प्रोवाइड करके। अब फिर उसके बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स में मतलब 5 करोड़ दिए। इस तरह से बैंक जो है जितना उसको को अमाउंट कैश के फॉर्म में पैसा मिला उसको इस तरह से वो इन्वेस्ट कर देती है और इसी तरह से वो जनरेट कर लेती है अपने फंड्स को। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।